So let me start the recording. Done. Okay. Okay. So student, my name is Iskra and I am the soft skill trainer of FirstBit Solution. And today Pragati ma'am is not there. She is not going to take the session. So today we have scheduled your soft skill session. So you might be shocked then कि आज क्यों प्रगति मैम का सेशन नहीं है. Is it? कौन कौन शॉक झाले कि अरे हम तो प्रगति मैम के सेशन के लिए आए थे. अच्छा, शॉक पॉजिटिवली शॉक्ड और नेगेटिवली. नेगेटिवली या पॉजिटिवली कि यार क्यों आज सॉफ्ट स्किल क्यों है. पॉजिटिवली. ओके, फाइन. एंड लाइक ग्लैड टू सी यू टुडे. आज तो वैसे दो इवेंट्स है, like the Chhawa movie, and you all are here. Everybody is just out and enjoying the movie. And the second event is the Valentine's Day, 14th Feb. So glad that you all are here, and we all are here studying the soft skill. So first of all, let's clap hands for ourselves. Send some reaction from your side. Okay, don't want to send any reaction? Perfect, Ankita. Good, Premraj. Chetan. Send any reaction, emoji and celebration. We'll celebrate here. Okay, Harshada is laughing. Fine. Okay, somebody just raise the hand. कुछ query है? Okay. So today, my dear student, आज आपण काय करणार आहे की मी तुम्हाला एक इंट्रोडक्शन देणार आहे की आपण सॉफ्ट स्किल मध्ये फर्स्ट बिट मध्ये नेमकं काय घेतो. म्हणजे आपलं फर्स्ट बिट में जो सॉफ्ट स्किल का हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या कवर करते हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे. एंड यस, उसमें इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी कि मैम आप ये पढ़ाओगे क्या, वो पढ़ाओगे क्या, एक्चुअल में सॉफ्ट स्किल क्या है, सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू नो. So before starting, just want to know you all, and therefore just write your city name in the chat box. A city name. Where are you from, everybody? Nandurbar, okay. Jalgaon, Veer, okay. Kolhapur, Dhule, okay. Dhule, that's it. Okay. धुळे, हडपसर पुण्याचा, पुणेच ही है. फाइन. पुणे, धुळे, कोल्हापुर, बीड, जळगाव, नंदुरबार. Okay, great. Glad to see you, the different students from different cities. And just a question सगळ्यांना असा आहे, what motivated you to join the session? Or what is your motivation, or what is your reason that you are joining at 7 p.m. in the evening where students doesn't join and you have joined? तुम्ही सगळ्यांनी join केलंय. So what is your reason? Come on, if you want to unmute and tell, you can, otherwise write in the chat box. काय reason आहे असं की मॅम ह्या reason मुळे मी join केलंय आज? हेच एक reason आहे. What is your motivation? कि प्लेसमेंट चाहिए या कुछ सीखना है या फर्स्ट बिट को देख रहे हैं कि फर्स्ट बिट कैसा पढ़ाते हैं. What is the reason? Any reason? Placement. Okay, placement to gain a technical knowledge. Perfect. So this is your motivation. तो एक दिन भी वेस्ट नहीं करना अभी. Learnings. Perfect. Good. Learning. Leaning. Oh, not a gym class, Namrata. Lean यहाँ पे नहीं होगा, जिम में होगा. Learning, she wants to say. Okay. That's fine, no worries. Okay, आगे बढ़ते थोड़ा. Anybody would like to share something? Learning bit by bit. Oh God, perfect answer. Good, Harshada. You have, that means बहुत search किया है first bit के बारे में. That learning bit by bit. Okay, so अभी let's begin with the session, the introductory session which we will have. But just want to know from your side, daily इतने ही student रहते हैं या इससे ज़्यादा रहते हैं? Like if you are the regular student, so इसको पता है? Anyone? Only this is a count daily or इससे ज़्यादा रहता है? Approximate? Can you tell? Can anybody share? Okay, learnings and placement is your answer. तो regular कोई नहीं है क्या यहाँ पे? Means do you know the count? Just a minute.
ओके। ओ 13-15 एवरेज इतना रहता है, बट आज सिर्फ 9 लोग हैं, मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 इवेंट्स जो है। तो फाइन देन, सो लेट्स स्टार्ट। तो हम फटाक से देख लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल में क्या रहता है क्या नहीं। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू वन क्वेश्चन, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, और हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ओके, नॉर्मली 15 to 17, so that means आज इवेंट की वजह से नहीं आए हैं। ओके, so how are you all feeling today? Write one word for your feelings right now. You're happy, excited, sad, nervous, tired. Good, very good, Ankita. Ankita is feeling good. Curious, oh my god, Chetan. Curious, happy, okay. Happy, what else? Okay, so on the screen मैं आपको दो ऑप्शन देने वाली हूँ, and you have to select दोनों में से एक ऑप्शन. Happy for learning, okay. Proud, Harshada, what happened today? You're feeling proud. Proud that you are joining in the evening. You're joining the session in the evening. So good, na? Okay, happy for learning. Perfect. So abhi my question, मेरा जो question है कि how are you feeling today? And I'm going to show you two options, and you have to select the one option. So ready everyone? Give me thumbs up if you're ready to see the option. Give me thumbs up. चलो, thumbs up. Send some emojis. क्योंकि बातचीत तो कोई नहीं कर रहा है, अनम्यूट तो कोई नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट इमोजी से तो भी समझेगा. ओके, so these are the two options. Which one are you? First or second? First? Okay, first. Everybody is first. Nobody is with the second option. Okay. Or with the third option. Who is feeling like this? With the third option, anyone? No one with the third option? No one with the Rajpal Yadav? No? Okay, fine. Okay, so now great. Let's move ahead. So I just want to tell you a survey. A research says that 57% of managers say they look for a candidate who is organized and can manage multiple projects. Meaning is कि जितने भी managers हैं 57, उसमें से 57% managers बोलते हैं कि उनको ऐसे candidate चाहिए who are well organized and who can manage multiple projects. जो अपना काम प्रॉपरली करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे से रहते हैं, अपना टास्क प्रॉपरली सेट करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे हैंडल कर पाते हैं. सो ऐसे कैंडिडेट्स उनको चाहिए इन देयर कंपनी, एंड देयरफॉर दे टेक द इंटरव्यूज. द नेक्स्ट सर्वे जो बोलता है दैट इज 60% ऑफ मैनेजर्स क्लेम the new graduates they see taking jobs within their organization do not have the required soft skills. मतलब 60% मैनेजर्स क्या बोलते हैं कि जिनको भी हम हायर कर रहे हैं, जो भी फ्रेशर्स है, जिनको जॉब चाहिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, उनके पास में रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स नहीं है. व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स बताती हूँ मैं, बट ऐसा 60% मैनेजर्स बोल रहे हैं. Then 81, can you see the number? 81% of companies find it challenging to hire talent with excellent soft skills. Again, 81% companies को बहुत difficult जाता है because they are not able to find a person with excellent soft skills. And Stanford Research Institute say 75 to 85% of long-term job success depends on soft skills. तो अगर जॉब में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए है तो 75 to 85% of its success depends on soft skills. Now what are soft skills? तुम्ही काय काय ऐकलंय सॉफ्ट स्किल बद्दल? कोणी सांगणार मला? चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. तुम्ही काय ऐकलंय सॉफ्ट स्किल बद्दल? तुमच्या अकॉर्डिंग व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? And see student, in soft skill session there are no wrong answers. मेरे सेशन में it's your perspective. I'm not going to say you are wrong because it's your answer. Okay, so yes, let me see the chat box. So क्या लगता है तुमको? Communication, very good, Premraj. What else? Anybody else? Soft skills ऐकून काय वाटते? Team and leadership, perfect, Snehal. Team, leadership, communication, what else?
Communication, interaction, discussion. Very good, Chetan. Very nice. Means maximum student knows what are soft skills. Anybody else would like to share? Initiative, one of the soft skill. Okay, one of the quality. Multitasking, perfect. Body language, most important point. Okay. अब ये सारी चीजें जो आपने बताया है, that is absolutely right. Self confident, perfect. Self confidence we can say. Dressing sense, grooming and attire. Dressing sense comes under grooming and attire. Good. So maximum student knows about soft skill. Now let me tell you कि एक simple definition. Soft skill is equals to people skills. Presence of mind, communication and body language. Very good, Namrata. Very good, Chetan. So soft skills अगर सुनते हो तो if you are getting confused what are soft skills, just remember people skill. जहाँ पे लोगों के सामने जाना है, लोगों के साथ में बात करना है. Dressing sense, you're like having that grooming sense, you're having that attire sense. So it is for interview in front of people. Solving a problem solving involves number of things. जो लोगों के साथ बातचीत करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या हम कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है. So all the things which is related to us as a person and which is related to the people around us, those are soft skills. And technical skills or hard skills, अब soft skill का opposite is hard skills. Hard skills are nothing but the technologies, the languages which you are learning, जो अभी आप इतने दिन कर रहे हो, जो प्रगति मैम ले रहे हैं. So those are the hard skills. The soft skills are all the list, the things which you have written in the chat box. Along with that, there are number of things. How you speak with the people, how you observe, how you listen, how you walk, that is body language, how your expressions are, how are you sitting, how is your dressing sense, how are you giving the answer to the interviewer. And not only for interview, soft skill काम आते हैं place होने के बाद भी. How you keep your ideas in front of the manager, the team leads, or in the meeting, how you present your ideas in front of everyone, how you behave with your colleagues, how you behave with your manager, how you stand out from other person, कि this person is a leader. And yes, leader की एक चीज बता दूं, leader के लिए title की जरूरत नहीं है. कि सपोज आप बोल रहे हो कि मैं तो ट्रेनी हूँ, मैं तो एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मैं कंपनी में लीडर कहाँ से बनूंगा. नो, लीडर इज अ क्वालिटी विदाउट टाइटल. You don't have to be the manager, you don't have to be the trainer, you don't have to be the team lead to be a leader. It is an individual quality. So as a number of things we are going to learn in soft skills, जो जब आप एडमिशन लोगे या जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, जब भी आपका soft skill session होगा, so daily we are going to learn one by one session of soft skills. Okay, and how many of you feel, can you just raise your hand, that soft skills are important? How many of you feel that soft skills are important? Raise your hand. Let me see how many students raised their hand. Only 3 students. Premraj, Chetan, Namrata, Vaibhavi, Sakshi, Ankita. Okay. Only 5. Only 6 students feels that soft skills are important. Okay. So soft skills important here because, okay, Ankita, because interview में जाने के बाद में, the way you are entering for the interview, the way you are sitting on a chair, इतने टाइम तक एंटर करने के बाद जैसे ही चेयर पे जाके बैठ जाते हो, 50% आपकी इमेज इंटरव्यूअर के माइंड में बन गई. द वे यू आर वॉकिंग, द वे योर एक्सप्रेशंस आर, द वे यू आर सिटिंग एंड द वे आप एक वर्ड अपने मुंह से जैसे निकालते हो, उसी टाइम दे जस्ट जज यू दैट आर यू गोइंग टू गेट सिलेक्टेड और आर यू गोइंग टू गेट रिजेक्टेड, जस्ट बिकॉज एज अ पर्सन फर्स्ट इंप्रेशन आपका कैसा है. और ये सारी चीजें इंप्रूव होती है ड्यू टू सॉफ्ट स्किल्स. ओके, नेक्स्ट. नाउ इंटरव्यू राउंड्स ये आपके होते हैं इन फर्स्ट बिट वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोस थिंग्स. तो सॉफ्ट स्किल में वी आर गोइंग टू सी द रेज्यूमे बिल्डिंग. रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, हाउ टू ऑप्टिमाइज इट, हाउ टू make resume so that our resume gets scrutinized for the interview. ये हम देखेंगे. उसके बाद में एप्टीट्यूड भी आपका होगा एंड टेक्निकल वो तो हो ही रहा है ऑलरेडी. एंड लास्ट इज द एचआर राउंड. तो एचआर राउंड के लिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स काम आता है.
because HR round is related to you, and as I said, skills जहाँ पे लोग इन्वॉल्व है, जहाँ पे खुद के बारे में है, जहाँ पे पीपल इन्वॉल्व है, वहां पे सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो एचआर राउंड का भी क्या रहता है कि सपोज फॉर एग्जांपल अपने एप्टी क्रैक कर लिया, एग्जांपल अपने सबने फॉर एग्जांपल यू हैव जस्ट क्रैक द एप्टी. एप्टी के बाद में टेक्निकल राउंड हो गया, टेक्निकल के बाद में एचआर राउंड आ गया. एप्टी क्रैक हो गया, टेक्निकल क्रैक हो गया, कोड सॉल्व कर लिया, सब हो गया. एंड नाउ एचआर राउंड. एचआर राउंड जैसे आता है एंड देन यू कम टू नो की यू हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम द एचआर राउंड. म्हणजे असं झालं होतं की ताट पण वाढलं होतं. आता तुम्ही एक घास बस जेवणार होते, तर तो घास पण गेला आणि ते ताट पण गेलं. मतलब कैन यू इमेजिन, रेज्यूमे स्क्रूटिनाइज हो गया, एप्टीट्यूड क्लियर हो गया, टेक्निकल क्लियर हो गया, एचआर से वापस आ रहे हो. हाउ कॅन बी दॅट, लाईक हु विल डिफाइन दॅट फीलिंग. किती रिग्रेटची फीलिंग असेल ती. सो वही हमको नहीं करना है, एंड देयरफॉर फर्स्ट बिट ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू सॉफ्ट स्किल्स. So we are going to, in like first bit, we are going to have almost 35 to 40 hours of soft skill session, जिसमें लैब भी होगा, सॉफ्ट स्किल का भी लैब होता है, so that to improve. ओके, सो रेज्यूमे देखेंगे हम सॉफ्ट स्किल में, एप्टीट्यूड टेक्निकल तो आपका अलग से सेशन होगा ही. अलॉन्ग विद दैट एचआर के लिए रेडी होना है, तो सॉफ्ट स्किल वी हैव टू स्टार्ट लर्निंग. ओके, नेक्स्ट. अभी द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर, ये इतने ही सिलेक्टेड टॉपिक्स नहीं है. इसमें वी आर गोइंग टू लर्न टीम बिल्डिंग ऑल्सो, ईमेल एटिकेट वो तो लिखा ही है, लीडरशिप ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न, फ्रेजेस वी आर गोइंग टू लर्न, कम्युनिकेशन तो ऑलरेडी है, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स वी आर गोइंग टू लर्न. तो इसके अलावा भी वी आर गोइंग टू लर्न नंबर ऑफ थिंग्स इन सॉफ्ट स्किल. सो दीज आर जस्ट द ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ. दिस इज जस्ट द ओवरव्यू which I am giving you, so that you will have some or the other idea. Okay, so public speaking. What is public speaking? Can anybody tell in the chat box? What is public speaking? Yes, can anyone tell what is public speaking? Public speaking का meaning क्या है? Come on, it's like skill. Speaking skill in public. Okay, what else? Anybody else? Good, Snehal. Talking to number of people like in a meeting. Very good, Chetan. What else? ओके, दैट्स इट. तो अभी सबसे ज्यादा क्या होता है ना, एक मिसकंसेप्शन है. पब्लिक स्पीकिंग मतलब लोगों को क्या लगता है कि स्टेज पे जाके बातचीत करना, ग्रुप डिस्कशन या रिलेटेबल. परफेक्ट प्रिंगराज. हाउ यू रिएक्ट फॉर फ्रंट पीपल्स क्वेश्चन. ओके, फाइन, दैट्स गुड. लाइक ऑल द 5 of you have given the perfect answer. सो पब्लिक स्पीकिंग, एक बहुत लोग मिसकंसेप्शन क्या रखते हैं माइंड में कि स्टेज पे जाके स्पीच देना इज पब्लिक स्पीकिंग. नो, also called oratory, is the practice of delivering speeches to live audience. Very good, Ankita. ये एक ऑरेटरी भी है, उसको ऑरेटर भी बोलते हैं. बट अगेन जैसे मैं बोल रही थी कि लोगों के सामने, लाइव ऑडियंस के सामने स्पीच देना तो पब्लिक स्पीकिंग है ही. बट सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्टेज पे जाके बातचीत करना नहीं है. उसके अलावा how you talk with your colleague, how you talk in a meeting, how you talk with unknown people, how you talk in a group, that is also public speaking skill. लोग, people, जो भी है, people के सामने बात करना is public speaking skill. So that is also we are going to learn in soft skill session. Public speaking में how to improve it, how to practice it, what tips to use, what techniques to use. Okay. Next we are next is active listening. अब active listening जो है, it comes under communication skills. So the most important, the crucial part of communication skill is active listening. तो ये communication skills के अंडर आएगा. एंड yes, we are going to learn communication skills also. तो अब communication skills के भी बहुत सारे misconception लोगों को रहते हैं. So just want to know from your side, what is communication skill? अनम्यूट करके बताओ यार. चलो, कोणी अनम्यूट करून सांगू शकणार? कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणजे काय?
Yes, student. What is communication skill? Anybody else would like to tell? No? And don't search on Google. मुझे तुम्हारे व्ह्यूज जानने. तुमचं काय म्हणणं आहे? कम्युनिकेशन स्किल्स म्हणजे तुमच्या अकॉर्डिंग काय आहे? Okay. No one wants to tell? So sorry. Okay. तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उसमें क्या रहता है, हाउ टू इम्प्रूव इट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन सॉफ्ट स्किल. Then second, as I said, resume writing also we are going to do. Then next is email etiquette, which we are going to do. So email etiquette, अभी क्या है ना, हमारे पास में सब रेडीमेड टूल्स है. राइट नाउ हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? अगर कुछ आपको सर्च करना है, सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? Unmute and tell. If you want to search something, if you want to know something, who is your best friend right now? एक ही word है. Exactly. So now there are number of tools. So ये Perplexity, then ChatGPT, then there are more AI generated tools. So ये सारे जो tools है which we use for search. तो अगर मैंने आपको बोला कि एक मेल लिखना है छुट्टी के लिए, या फिर आप कंपनी में जाने के बाद में, if a person say, if a team lead say कि you have to write a mail, आप क्या करोगे? ChatGPT पे जाओगे या वन ऑफ द एआई टूल्स पे जाओगे, उसको प्रॉम्प्ट दे दोगे कि एक मुझे मेल बना के दो, गिव मी अ मेल विच इंक्लूड्स द लीव, मेल फॉर लीव या फिर हॉलीडे, और आपके पास में पूरा मेल रेडी होगा. देन व्हाई हैव वी मेंशनिंग ईमेल एटिकेट? जस्ट टू नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल. ईमेल कैसे लिखते जाना है, कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस, सैल्यूटेशन, मैसेज पार्ट 1, सीसी, बीसीसी 2, ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है. एंड देयर आर एटिकेट ऑल्सो, ईमेल एटिकेट जो हमको फॉलो करने होते हैं, बिकॉज समटाइम्स हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है. क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें ड्यूरिंग लाइक व्हेन यू राइट द ईमेल, उस वक्त पे हम माइंड में रख सकते हैं. So that is what we are going to learn in email etiquette. Second is presentation skills. Now, if you're presenting a project, if you're speaking in a meeting, if you're presenting something in a meeting, if you're presenting here in class, so the way you are talking, the way your tone is, the way you're keeping your words, the way you are standing, the way you're looking at the screen, the way you are explaining your PPT, ये सारी चीजें जो है, this comes under presentation skills. So this is also we are going to learn. Then next, body language. बॉडी लैंग्वेज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे पता चलेगा. एंड नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. तो हाउ मेनी ऑफ यू फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग? किसको किसको लगता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको चाहिए मैम? टाइम मैनेजमेंट एंड गोल सेटिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक. नोबडी फील्स? ओके. वैसे वैभवी और प्रेमराज का हैंड वो ऑलरेडी रेज्ड. स्नेहल, चेतन, नम्रता, साक्षी. ओके. यस. सो हाउ टू मैनेज मतलब क्या है ना, कि जितना आप ये पढ़ोगे, जितना सॉफ्ट स्किल पढ़ोगे, उतना आपके एचआर के आंसर्स रेडी होंगे. सपोज if you have learned a time management, if you have learned different techniques of managing time, and in case the HR asks you, how do you handle stress, how do you handle multiple projects, how do you handle multiple tasks, तो then you remember the time management का सेशन. तो मैंने टाइम मैनेजमेंट में ये टूल पढ़ा था, तो अब मैं इंटरव्यूअर को बताऊंगा कि आई यूज दिस टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट टू मैनेज माय टास्क, टू मैनेज माय प्रोजेक्ट, टू ऑर्गेनाइज माय सेल्फ. एंड इससे क्या होता है कि एक अलग इंप्रेशन जाता है टू द एचआर, बिकॉज स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम एचआर के आंसर्स जो है सारे स्टूडेंट गूगल पे ढूंढते हैं. तो अभी एचआर के लिए I am going to be the Google for you. What to answer, how to answer, how to make the answer, what are the frameworks, ये सब हम पढ़ेंगे. Okay. Then next is corporate etiquette. तो corporate etiquette भी हम पढ़ेंगे, how to behave, what are the pillars when you get selected, तो क्या important रहता है when you get placed in a company. तो बहुत सारी चीजें हमको नहीं समझ में आती है. When talking with the people, when we are talking with a colleague, when we are talking with unknown person,
वी नीड टू कीप अ डिस्टेंस ऑफ 1 हैंड. तो ये बहुत लोग भूल जाते हैं. बहुत पास में जाके बात करते हैं, धीरे बात करना रहता है, ऑकवर्ड फील होता है, तो आप एकदम क्लोज जाके यू टॉक, सो विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कॉर्पोरेट एटिकेट्स है विच वी नीड टू लर्न हम कंपनी में प्लेस होने से पहले. फाइन. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, सब एक रीजन देते हैं कि मैम टुमारो आई विल बी प्रिपेयर्ड विद द मॉक. मॉक्स आर नथिंग बट अ प्रैक्टिस इंटरव्यू सेशन. तो आपके बहुत सारे प्रैक्टिस के इंटरव्यूज के सेशन होंगे फॉर प्रैक्टिसिंग. एंड उसमें ही स्टूडेंट सब बोलते हैं कि मैम टुडे आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, कैन आई जस्ट गिव माई इंटरव्यू टुमारो. और वो टुमारो कभी नहीं आता है. Okay. And as I can see, as I said, you all have joined at 7 p.m. today in the evening, which is really, really proud thing. That means you all are so serious about your studies, about your placement, about your life, that you have been present here when everybody is enjoying and you are here attending the session. So उतना ही serious you have to be with the mock. जितना आंसर आता है उतना दे दो, that's it. Sorry. जितना तुमको मॉक में आन्सर आता है उतना दे दो, सो दॅट आपल्याला समजेल ना की आपण किती पाण्यात आहे. ओके. सो देयरफॉर मॉक्स आर व्हेरी इंपॉर्टंट. सो बी प्रेजेंट एवरीवन फॉर द मॉक. तो मॉक हेल्प यू टू प्रिपेयर मोर एंड मोर फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज जितने बार वो इंटरव्यू की सिचुएशन में जाओगे बाय गिविंग मॉक, उतना तुम ग्रो करते रहोगे. ओके. नेक्स्ट. So this is my expectation from all of you. Willingness. Unless and until you are not willing to participate, unless and until you are not ready to join the session, कुछ नहीं होगा. अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि स्टूडेंट अनम्यूट एंड स्पीक, nobody is willing to unmute and speak, all are writing in the chat box. तो अब सॉफ्ट स्किल में क्या होता है, वी आर गोइंग टू हैव लैब सेशन. तो व्हाट डू यू थिंक लैब मतलब क्या होगा सॉफ्ट स्किल का? कोई बता सकता है? सॉफ्ट स्किल का लैब मतलब क्या है? बाकी टेक्नोलॉजीज के तो लैब यू ऑल नो, बट व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स लैब? ओह गुड चेतन. ग्रुप डिस्कशन. व्हाट एल्स? दैट्स इट. अदर स्टूडेंट, व्हाट डू यू थिंक सॉफ्ट स्किल्स लैब मतलब क्या? ओके. आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. सपोज आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख गए. ओके. फॉर 1 hour or 2 hours we have learned communication skills. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि यहाँ पे टीम पे गूगल मीट पे एक ब्रेकआउट रूम करके फीचर है. डू यू नो ब्रेकआउट रूम? ओके. इंटरव्यू. गुड चेतन. ब्रेकआउट रूम पता है किसी को? यस एनीवन? डू यू नो व्हाट इज ब्रेकआउट रूम? नो. सो यहाँ पे आप जहाँ ज्वाइन हुए हो गूगल मीट पे, वहां पे ब्रेकआउट रूम रहता है. सो ब्रेकआउट रूम में जाके यू विल हैव योर ग्रुप, और वो ग्रुप में आपका डिस्कशन होगा और कम्युनिकेशन स्किल्स जो पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन. मींस इफ आई से बी अ गुड लिसनर, एग्जांपल, इतना तो मैं ऐसे वेग नहीं बताऊंगी. सो वहां पे लिसनिंग की एक्टिविटी आपको वो ग्रुप में करनी पड़ेगी. अब ब्रेकआउट रूम क्या रहता है? नाउ आई एम एबल टू सी सपोज 9 स्टूडेंट्स. ओके. राइट नाउ आई कैन सी 9 स्टूडेंट्स. तो आप भी 9 लोगों को देख पा रहे हो. बट व्हेन आई डिवाइड यू इन द ब्रेकआउट रूम, तो सपोज एक टीम में 3 लोग हैं, तो आपको अभी ये रूम में सिर्फ 3 ही लोग दिखेंगे. एंड राइट नाउ वी आर इन द मेन सेशन. ओके. और जैसे ही मैं ब्रेकआउट रूम कर देती हूँ, ऑप्शन आता है, वैसे ही यू गो इन अ ग्रुप जहां पे सिर्फ आपके ग्रुप मेंबर्स रहेंगे. और जैसे ही वो ब्रेकआउट रूम का टाइम खत्म होता है, वैसे यू विल कम बैक हियर टू द मेन सेशन. डू यू वांट टू ट्राई राइट नाउ? जस्ट फॉर 1 minute और few seconds. कुछ ऐसा हैक वगैरह नहीं है. If everybody raises your hand, then we can just try for few seconds. You can just observe how it feels. Raise your hand if you are ready. Let me see. कौन ready है? So 5 students are ready. 7. Okay, 6 students are ready. Others? If all are ready, then only I can just show you the demo. बस 6 लोग. Okay, 7, 8. Fine. Okay, so let's see one demo of a breakout room. Or I'll just divide you into the rooms. That means offline कैसे group रहते हैं ना students, वैसे ही
ऑनलाइन ग्रुप्स बनते हैं। ऑफलाइन कैसे, सपोज मैंने तुम्हारा ग्रुप कर दिया, तो आप क्या करोगे, ग्रुप अगर बन गया आपका, तो यू विल बी लाइक 3 लोग, हाँ एक ग्रुप में 3 लोग यहाँ, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। तो वी आर गोइंग टू गो इन अ ग्रुप ऑफ 2 आपके ग्रुप में, और एक ही पर्सन रहेगा, और मतलब यू आर गोइंग टू बी इन अ ग्रुप ऑफ 2। तो एक काम करते हैं, 3 कर देते हैं। 1 2 5। सो एक ग्रुप में 2 ही लोग रहेंगे, एज देर आर ऑड नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, just 8 students are present. How come? Okay. It's going to be for just 1 minute. And आपके स्क्रीन पे एक ऑप्शन पॉप होगा जहाँ पे आपका आपका रूम नंबर दिखेगा। Just click on it and here you go. अरे अंकिता, वैभवी, you are in which room? Vaibhavi, you are in 3. Ankita, you are also in 3. Got it? So this is how we are going to be go in a group, so that इतने लोगों के सामने बात करना कभी कभी डर लगता है, तो we'll just start with 2 people, 3 people, having conversation with them, and this is what we are going to do. तो इसीलिए willingness is very important. If you are not willing to talk, if you are not willing to improve yourself, if you are not willing to participate, then definitely you are not going to improve. Soft skill ऐसा है ना कि आप आधा घंटा सुनो and 2 hours implement करो, तब जाके वो improve होता है। उल्टा नहीं होगा कि 2 घंटे आप सॉफ्ट स्किल्स सुनते रहो एंड यू आर अ ग्रेटेस्ट पर्सन इन अ सॉफ्ट स्किल्स। नो, half an hour just listen to soft skills, and whatever you have heard about soft skills, the techniques you have learned, implement it for 2 hours, you are going to be an amazing person। ऐसा रहता है। सो देयरफॉर यू मस्ट हैव कम टू नो कि फर्स्ट बिट में रेशियो भी ऐसा है। 1 घंटे का सेशन होता है तो 2 घंटे का लैब, 2 घंटे का सेशन होता है तो 4 घंटे का लैब होता है। Because we focus more on your growths, not just to complete the syllabus, but to make you more employable, for and along with that to like help you in the growth। ये सबसे ज्यादा important है, instead of just covering up the lesson or session। नेक्स्ट, द सेकेंड पार्ट इज विलिंगनेस। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अभी मुझे पता नहीं है कि तुम नोटबुक लेके बैठे हो या नहीं बैठे हो, और मे बी वेयर यू आर, maybe you are with your friends, maybe you are at your friend's house, सेशन ऑन कर दिया है, दोस्तों के साथ बातचीत चल रही है, या कहीं बाहर गए हो, मोबाइल रख दिया है साइड में ऑन करके। आई डोंट नो, आई कैन जस्ट डू वन थिंग, इज आई कैन जस्ट ट्रस्ट यू। तो विलिंगनेस इसलिए मैंने बोला है कि आई डोंट नो वेदर यू आर विद अ बुक और अ पेन, सो देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर विलिंगनेस है तो यू विल सिट विद बुक एंड पेन properly and you'll note down the points of soft skills, and this is what I expect। बिकॉज ऑफलाइन में मुझे ये ऑनलाइन में बहुत ही बुरा लगता है कि स्टूडेंट्स का मैं होमवर्क या जो भी लिखा है बुक में वो देख ही नहीं पाते।
ऐसा लगता है कभी कभी कि काश मेरे पास में कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि कैमरा ऑन आपका कर दूं एंड लेट मी सी द नोटबुक, बट नॉट पॉसिबल। इसलिए ऑफलाइन में कैसा है ना कि ऑप्शन ही नहीं रहता। तो ऑनलाइन हो तो इफ यू आर विलिंग, टेक अ बुक और अ पेन एंड सिट एंड बी रेडी टू पार्टिसिपेट। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी क्या है, तुम आज सेशन ज्वाइन करते हो, कल नहीं करते हो, परसों नहीं करते हो, देन यू आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स योर प्लेसमेंट, यू आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स योर गोल, यू आर नॉट कमिटेड टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। Okay, so commitment is very important, and along with that comes consistency. अब consistency क्या है ना कि suppose do you all know gym? Unmute and say yes or no. Gym पता है सबको? Yes, ma'am. Perfect. Yes, ma'am. yes सुनने मिला यार, मुझे अभी अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट है। तो you all know gym. तो तीन, नम्रता, प्राची एंड चेतन, थैंक यू सो मच। तो क्या है, सपोज यू हैव डिसाइडेड कि कल से आई विल गो टू जिम, कल से छोड़ो, कल तो सैटरडे है, परसों संडे है, मंडे को डिसाइड किया, मंडे को आई विल गो टू जिम, पैसे वैसे भर दिए हैं एंड अभी जिम जा रहे हो, मंडे को जिम को गए, ट्यूसडे को भी गए, एक्साइटमेंट है ना, कपड़े लेके रखे हैं, शूज लेके रखे हैं, और अभी गाने वाने सब हेडफोन्स लेके चले गए जिम में, और अच्छे से फर्स्ट डे ही आर जस्ट लुकिंग एट योर बाइसेप, बॉडी बन गई क्या, पतली हो गई क्या, गेन हो गया क्या, ऑल दोस थिंग्स गोज ऑन फॉर 2 days, एंड ऑन वेडनेसडे व्हाट हैपेंस इज योर बॉडी स्टार्ट्स पेनिंग, देन यू टेल योरसेल्फ कि नहीं यार आज छोड़ो यार, आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे को जाता हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रेगुलर जाता हूँ या जाती है, देन कम्स थर्सडे एंड थर्सडे यू आर लाइक कि यार आज अभी भी पैर दुख रहे, माझा आता हात पाय ना दुखून राहिलाय, मी एक काम करते फ्राइडेला जाते, ओके। मंडे भी नहीं आता है, हाँ थैंक गॉड, पहले ही बोल दिया, मंडे ही नहीं आता है, दैट मीन्स नो कंसिस्टेंसी। तो फ्राइडे फिर आप डिसाइड करते हो कि चलो फ्राइडे जाते हैं, फ्राइडे आता है, देन यू आर लाइक कि अभी तो सैटरडे है, अभी संडे है, तो एक काम करते हैं ना, मंडे को ही चले जाते हैं। या द सेकेंड ऑप्शन व्हाट यू से कि एक काम करते हैं, संडे को जिम में जाते हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन का जिम, 1-1 घंटे का मैं संडे को कंप्लीट कर लेता हूँ। इज इट पॉसिबल माई डियर स्टूडेंट? इज इट पॉसिबल? या आपने डिसाइड किया कि अगर मैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जिम नहीं जा रहा हूँ, मैं संडे को कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। अब वो जिम में जाके आप जिम से बाहर ही नहीं आओगे, यू विल बी लाइंग देयर ऑन द फ्लोर। सेम इज विद द स्टडीज, डेली 1 hour is important instead of just spending, body will be in total pain, exactly वो ग्रास्प करने में बहुत मुश्किल होगा, है ना। तो सेम इज विद द स्टडीज, व्हाट यू विल डिपेंड ऑन ऑनलाइन, मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन रिकॉर्डिंग। मैं पूरी 5 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की रिकॉर्डिंग देख लूंगा ऑन संडे, या फिर अनदर ऑप्शन, सॉफ्ट स्किल ही तो है ना, रिकॉर्डिंग देख के ना इंटरव्यू के 2-3 दिन पहले आई विल कंटिन्यूअसली सिट एंड आई जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू के आंसर्स देख लूंगा और चले जाऊंगा। नॉट पॉसिबल माई डियर स्टूडेंट, नॉट एट ऑल। सो कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन सॉफ्ट स्किल को बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत कम। और अभी मेरे जो फ्रेंड्स, जो एक्सपीरियंस फ्रेंड्स है, दोज हु आर इन अ कंपनी, they daily ask me ki Iskra, please take our session because we are not able to speak in meeting, our team leads are shouting on us ki why you are not able to present, why you are not able to communicate, वो handover वगैरह रहता है, task handover का रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, वो हम बोल नहीं पाते, हम task present नहीं कर पा रहे, तो कुछ हमको solution दे। they cry in the meeting that they are not able to present। ऐसी सिचुएशन है, अभी ज्वाइन हो जा रहे हैं बट उनको वो स्किल्स ही नहीं दिख रहे फॉर द ग्रोथ, एंड द टीम लीड्स एंड द मैनेजर्स आर शाउटिंग ऑन देम। सो वो रिग्रेट बाद में होता है, अभी एज अ स्टूडेंट आपको सॉफ्ट स्किल इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, बाद में प्लेस होने के बाद जब लाइफ स्टार्ट होती है तब फिर मेरे पास में इतने लोग आते हैं जो बोलते हैं, जो प्लेस्ड है, कि मैम प्लीज हमारा कम्युनिकेशन वापस से लो, हमने सेशन नहीं ज्वाइन किए हैं, हमने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी है, वी वांट टू प्रैक्टिस मोर, व्हाट टू डू, हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, ये दिक्कत होती है। और सबसे ज्यादा मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस कब आते हैं? प्लेसमेंट के पहले। उसके पहले कौन इस्क्रा मैम, सॉफ्ट स्किल में कौन सी सॉफ्ट स्किल, कौन सी इस्क्रा मैम, क्या सॉफ्ट स्किल, हमको नहीं करना है। तो दिस शुड नॉट हैपन विथ यू। कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विलिंगनेस।
ओके, इफ ये सब चीजें तुम करने के लिए रेडी हो, तब जाके यू विल अचीव सम और द अदर थिंग, तब जाके यू विल अचीव द प्लेसमेंट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. अदरवाइज यू जस्ट कम ऑन मंडे, ट्यूसडे को एब्सेंट रहो, वेडनेसडे को आ जाओ, या सेशन में 5-10 मिनट रुको, अरे कुछ ऐसे ही चल रहा है कि छोड़ के चले जाओ. ऑल दोस थिंग्स हैपन. ओके, so this is the thing which I want to tell all of you regarding soft skills. तो इसमें किसी को कुछ query, any doubt regarding soft skill, not regarding the schedule, but regarding soft skill, because आपकी group में अगर if you are already there in the group, you can just know the details. But soft skills के बारे में कुछ query, everyone? Guys, query नहीं है? No? Yes, Premraj? Yes, Ankita is raising the hand. Hand raise है तो any query, my dear student? सब clear है. And soft skills, sometimes I like to talk related to soft skills. Oh, so sweet. Like sweetest thing I have heard today. So sometimes like with the group of people or to practice or for what? Like you like to talk about soft skill with friends or to practice or for what? What is the reason? Oh, so great. No, Premraj, this is going to be the platform for you for soft skill then. Hopeful to meet you in soft skills session. Okay. Any other student? Kai query konala? Ankita, Namrata, Sakshi, Chetan, Yash, Nehal, Prachi. Any query? प्रेमराज ने तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया है. अच्छा, नो तो बोल दो, अनम्यूट करके नो बोल दो, एटलीस्ट आई नो दैट यू आर देयर. अनम्यूट, लेट मी No, लिसन. ma'am. ओके, परफेक्ट. चेतन? This. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट? No, ma'am. Perfect. Ankita? Next, No, ma'am. left the meeting. Namrata? Okay. This happens. This is a thing which I face in soft skill. When I say speak up, when I say present, when I say at least say one word, left the meeting, left the meeting, left the meeting. Okay. So together, you just can say bye at the count of 3. And hopefully in a journey of soft skills at First Bit Solution, we will meet. तो अभी तो इंट्रोडक्टरी सेशन था, कल से तुम्हारा वापस से प्रगति मैम का सेशन स्टार्ट होगा. तो चलो मिलते हैं आने वाले दिनों में सॉफ्ट स्किल के लिए. एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? अच्छा, बाय द वे, हाउ वाज द सेशन, टुडेज सेशन? It was Very great, nice, ma'am. ma'am. Oh, so sweet. Okay. Thank you so much, Chetan and Namrata. Thank you, Premraj. Okay then. So together, you're welcome. You're welcome. Together, you can just unmute and say bye at the count of 3. 1, 2, 3. Bye, ma'am. Bye. Okay. Bye, everyone. So thank you so much.